Hello students, welcome to Eduate. In this video, we will solve exercise 9.1. Question 1 करते हैं पहले. तो write the first 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6 whose nth terms are given. So an is equal to n plus 2. An is given. An is n plus 2. फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए हमने n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. क्वेश्चन 1 to 6 में हमने n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 रखना है, तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएंगे. सो पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो वी विल हैव a1 इज इक्वल टू 1, 1 plus 2. A2 is equal to 2, 2 plus 2. A3 is equal to 3, 3 plus 2. A4 is equal to 4, 4 plus 2. A5 is equal to 5, 5 plus 2. So 1, 1 plus 2 is equal to, इसको simplify करेंगे, 1 into 1 plus 2 is 3. So it is equal to 3. And this 2, 2 plus 2, 2 plus 2 is 4, 4 into 2 is 8. And 3 plus 2 is 5, 5 into 3 is 15. इसी तरह से this 4 plus 2 is 6, 6 into 4 is 24. So A5 के लिए 5 plus 2 is 7, 7 into 5 is 35. Now question 2. Question 2, an is given n upon n plus 1. So a1 will be equal to 1 upon 1 plus 1. A2 is 2 upon 2 plus 1. A3, it is 3 upon 3 plus 1. A4, it is 4 upon 4 plus 1. A5 is 5 upon 5 plus 1. So 1 upon 1 plus 1 is equal to 1 by 2. A2 सॉल्व कर लेते हैं, 2 by 3 आ जाता है. A3 सॉल्व करेंगे इसी तरीके से 3 by 4. A4 4 by 5 and A5 is equal to 5 upon 5 plus 1 is 5 upon 5 by 6. 5 by 6. A5 is 5 by 6. Similarly, question number 3. An is given 2 की power n. So A1 is 2 की power 1. A2 is 2 की power 2. A3 is 2 की power 3. A4 is 2 की power 4. A5 is 2 की power 5. 2 की power 1 is equal to 2. So A2 is 2 की power 2 is 4. A3 is 8. A4 is 2 की power 4. It is equal to 16. A5 is 2 की power 5. It is equal to 32. Question 4 में an दिया हुआ है. An is equal to 2n minus 3 upon 6. So A1 will be equal to n is equal to 1 रख देते हैं, 2 into 1 minus 3 by 6. A2 is 2 into 2 minus 3 by 6. A3 is 2 into 3 minus 3 by 6. A4 is 2 into 4 minus 3 by 6. And A5 is 2 into 5 minus 3 by 6. So A1 आ जाता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 into 1 2, 2 minus 3 by 6 is minus 1 by 6. Similarly A2 सॉल्व कर लेते हैं. A2 will be equal to 2 into 2 4, 4 minus 3 is 1, it is 1 by 6. And A3 is 3 into 2 6 minus 3, 6 minus 3 is 3, 3 by 6. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 by 2 आ जाता है. A4 is 4 into 2 is 8, 8 minus 3, 8 minus 3 is 5, so it is 5 by 6. A5 is 2 into 5 is 10, 10 minus 3, 10 minus 3 is equal to 7. Okay, it is 7 by 6. So A5 is 7 by 6. Now question number 5. 5 के लिए an दिया हुआ है -1 की पावर n minus 1 into 5 की पावर n plus 1.
सो a1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1. सो ये आ जाता है माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 इज 0 एंड माइनस 1 की पावर 0 इज 1. सो 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 इज 2, 5 की पावर 2, ये आ जाता है 25. सो a1 विल बी इक्वल टू 25. इसी तरह से a2 सॉल्व कर लेते हैं. a2 इज माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1. सो ये आ जाता है माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इज 1, माइनस की पावर 1 is minus 1. So आंसर ये नेगेटिव आएगा. इंटू 5 की पावर 3 is 1. 5 की पावर 3 is 125. So a2 is minus 125. a3 is equal to minus 1 की पावर 3 minus 1 इंटू 5 की पावर 3 plus 1. माइनस 1 की पावर 3 minus 1 is 2. माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1. सो आंसर प्लस में आएगा. 5 के पास 3 plus 1 is 5 power 4. So 5 power 4 is 625. A4 कर लेते हैं. A4 is equal to minus 1 की पावर 4 minus 1 into 5 की पावर 4 plus 1. So ये आ जाता है minus 1 की पावर 3 and minus 1 की पावर 3 is negative. So आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस आएगा और माइनस 1 की पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा. तो 5 की पावर 4 प्लस 1 इज 5 पावर 5 एंड 5 की पावर 5 इज 3125. सो इट इज 3125. A4 इज इक्वल टू माइनस 3125. A5 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 5 plus 1. So answer will be A5 will be minus 1 की power is 4. 4 is even number, so it becomes plus 5 power 5 plus 1 becomes 5 power 6 and 5 की power 6 is 15625. So A5 will be equal to 15625. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि an दिया हुआ है. an is equal to n square plus 5 divided by 4. तो a1 will be equal to, put n is equal to 1 square plus 5 divided by 4. So it will be equal to 1 square is 1 plus 5 is 6. So 6/4 and 6/4 is equal to 3/2. So a1 will be equal to 3/2. So a2 will be equal to 2 square plus 5/4. So it is equal to 2 multiplied by 2 square is 4 and 4 plus 5 is 9 and this divided by 4. 2 से 2 times कट जाता है. So it is equal to 9/2. Now a3 is equal to 3 square plus 5/4. So it is equal to 3 square is 9, 9 plus 4 is 9 plus 5 is 14. So it is 3 into 14/4 और ये 2 से 7 times, 2 से 2 times, तो ये आ जाता है 21/2. So A3 is 21/2. A4 is equal to 4 square plus 5/4. So it is equal to 4 multiplied by 4 square is 16 and 16 plus 5 is 21. So 21/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया. A4 आ जाता है 21. A5 निकाल लेते हैं. A5 is equal to 5 square plus 5 divided by 4. So it is equal to A5 is equal to 5 का स्क्वायर is 25 plus 5 is 29. So divided by 4 and it is equal to, देखिएगा 5 का स्क्वायर इज 25 plus 5 is 30. So this is 30. So ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. 15/2 and 15 into 5 is 75. So A5 is 75/2. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड
the indicated terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 whose nth term are given. तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 में nth terms given दिए हुए, nth terms are given. Find the indicated term. क्वेश्चन 7 करते हैं पहले. an is equal to दिया हुआ है 4n minus 3. We have to find out a17 and a24. So a17 के लिए n की जगह 17 रख देते हैं, minus 3, ये आ जाता है 17 4 68 minus 3, so it is equal to 65. So a7 will be 65 and a24 is 4 into 24 minus 3. 4 into 24 is equal to 96 minus 3 and 96 minus 3 is equal to 93. क्वेश्चन 8 करते हैं. 8 में an दिया हुआ है, an is equal to n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n. a7 फाइंड आउट करना है. a7 n की जगह 7 रखेंगे, 7 स्क्वायर अपॉन 2 द पावर 7. सो ये आ जाता है, it is 7 square is 49 and 49 upon 2 की पावर 7 is 128. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. 9 करते हैं. 9 में an दिया हुआ है -1 की पावर n minus 1 n क्यूब. a9 फाइंड आउट करना है, तो n की जगह 9 रख देते हैं, -1 की पावर 9 minus 1 और 9 की पावर 3. सो ये आ जाता है -1 की पावर 8. 8 इज इवन, तो -1 की पावर इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा. एंड 9 की पावर 3 इज 729. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. 10 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3. a20 निकालना है, सो n की जगह 20 रखेंगे, 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3. सो ये आ जाता है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 23. सो द आंसर इज 20 into 18 is 360. 360 is 23. So a20 is equal to 360 upon 23. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स. पहले 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज. सो 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है, a1 देखिएगा 3 दिया हुआ है, a1 फिक्स कर दिया, और बाकी अदर्स यानी फॉर n ग्रेटर देन 1. सो n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 3 4 एंड सो ऑन के लिए दिया हुआ है कि an इज इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2. सो n इज इक्वल टू 2 3 4 के लिए an दिया हुआ है, इट इज 3an माइनस 1 प्लस 2 मीन्स ये प्रीवियस टर्म से रिलेटेड है. सो अगर हम a2 की बात करें, a2 विल बी इक्वल टू 3a2 माइनस 1 मीन्स 3a1 प्लस 2. इसी तरह से a3 विल बी इक्वल टू 3a2 प्लस 2 एंड a4 विल बी इक्वल टू here 3a3 प्लस 2. a5 विल बी इक्वल टू 3a4 प्लस 2. a1 दिया हुआ है, सो a1 हमने a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है. a1 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो a2 के लिए a1 की वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2. ये आ जाता है 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इज 11. सो a2 आ गया, a2 इज 11. a3 सॉल्व करेंगे, 3 और a2 हम निकाल चुके हैं, 3 इंटू 11 प्लस 2. सो 11 टू 3 इज 33 प्लस 2, 33 प्लस 2 इज 35. सो 3 35 आ गया. इसी तरह से a4 विल बी 3 इंटू 35 प्लस 2. 3 इंटू 35 इज 105 एंड 105 प्लस 2 इज 107. इसी तरह से a5 निकालेंगे, इट विल बी 3 इंटू a4. a4 इज 107 प्लस 2. 3 इंटू 107 इज 321. 321 प्लस 2 इज 323. Now question number 12.
सो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है a1 इज -1 और हमने निकालना है a2। सो a2 a3 इसके लिए an दिया हुआ है an इज इक्वल टू an-1 अपॉन n इक्वल टू ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि फॉर n is equal to 2, 3, 4 and 5. So a1 is given, it is -1. So a2 will be equal to, from this equation, a2 will be a2 minus 1 means a1. a1 upon n is 2, a1 upon 2. Similarly a3 will be equal to a2 by 3 and a4 will be equal to, इस इक्वेशन में हमने n की जगह 4 रख देते हैं, so 4 it is 4 minus 1 a3 divided by n is 4, so a5 will be equal to a4 divided by 5. अब ये वैल्यू रख देते हैं, a1 हमारे पास है, a1 will be, a1 is -1 so it is -1 by 2, it is a2 हमने कैलकुलेट कर लिया, a2 हमने कैलकुलेट किया हुआ है -1 by 2 and this divided by 3, ये आ जाता है -1 by 6। इसी तरह से हम a4 निकालेंगे, a4 के लिए a3 यूज करना है, a3 is -1 by 6, so it is -1 by 6 divided by 4, it is equal to -1 by 24। a4 -1 by 24 आ गया, a5 is equal to a4 by 5, a4 is -1 upon 24 divided by 5, so ये आ जाता है -1 upon 24 into 5 is 120। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, देखिएगा a1 और a2 दोनों 2 दिए हुए हैं, यानी a1 is 2, a2 is also 2, तो a1 और a2 ऑलरेडी निकाले हुए हैं। और इसके बाद n ग्रेटर देन 2, यानी n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसके लिए an is equal to an minus 1 minus 1, okay, so n is equal to 2, 3, 4, 5 के लिए ये दिया हुआ है। so a1 is 2, a2 is 2, पहले दो टर्म निकले हुए हैं। a3 के लिए देखिएगा इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए n ग्रेटर देन 2 का मतलब n इज इक्वल टू 3, 4, 5 के लिए इस इक्वेशन को यूज करना है, ओके, n ग्रेटर देन 2 है ये, तो इसमें 2 नहीं आएगा, सो n इज इक्वल टू 3, 4, 5 के लिए an इज an minus 1 minus 1, सो a3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने रखना देखिएगा इस इक्वेशन में 13 में n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं, सो इट इज इक्वल टू a3 minus 1, 3 minus 1 is 2, so a2 minus 1, so a3 will be equal to a2 minus 1, a2 की वैल्यू रख देते हैं, a2 की वैल्यू इज 2, 2 minus 1, so a3 आ जाता है, a3 is equal to 1, so a3 is 1, a4 इसी तरह से निकालेंगे, a4 is equal to a3, इसमें n is equal to 4 रखना है, so it is a3 minus 1, so a4 आ जाता है, a3 is 1 minus 1, so a4 is equal to 0। now a5 के लिए an minus 1, a5 minus 1 is a4 minus 1, so a5 आ जाता है, a4 is 0 minus 1, so a5 आ गया, 0 minus 1 is minus 1, so ये हमारा a5 आ गया, a4 is 0 and a3 देखिएगा a4 0 आ गया and a3 is 1, यहाँ पर a3 is 1 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने सभी टर्म्स निकाल लिए। ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, सीरीज की बात हो रही है तो सीरीज को हम किस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन 11 में सीरीज लिख लेते हैं, सीरीज विल बी a1 a2 a3 a4 a1 a2 कॉमा लगा के हमने ये टर्म्स लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सीरीज लिख देते हैं, तो ये सीरीज आ जाती है, देखिएगा सीरीज को प्लस, देखिए सीरीज को प्लस करके लिखेंगे और सीक्वेंस के को कॉमा लगा के लिखते हैं, तो सीरीज विल बी a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 and so on। so सीरीज हम लिख लेते हैं यहाँ पर। so क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सीरीज होगी 3 plus 11
plus 35 plus 107 plus 323 प्लस एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सीरीज का आंसर ध्यान लिख देते हैं, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5 निकाले हुए हमने। सो सीरीज होगी यहाँ पर -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120 माइनस एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 में हमने यहाँ से A1 A2 A3 A4 A5 ले लेना है। तो सीरीज होगी इसके लिए 2 + 2 + 1, नेक्स्ट टर्म 0 है तो +0, देन -1 प्लस जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा एंड सो ऑन। सो ये आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है द फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाई 1 = A1 = A2, यानी A1 दिया हुआ है 1, A2 is also 1, so A1 is 1, A2 is 1, and AN दिया हुआ है AN is equal to AN - 1 plus AN - 2 for n greater than 2 का मतलब n is equal to 3, 4, 5 and so on. So find AN + 1 upon AN for n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. ये हमने फाइंड करना है। सो फॉर n is equal to 1, so AN + 1 upon AN will be equal to A2 by n, 1 रख देते हैं, 1 + 1 is 2 and this is A2 by A1. So this will be equal to, what is A2? A2 is 1, A1 is 1, so this is 1. Now for n is 2, AN + 1 upon AN will be equal to A3 by A2 and this is equal to A3 हमने निकालना है। सो A3 हम फाइंड करेंगे। A3 के लिए देखिएगा AN इज इक्वल टू दिया हुआ है ये। सो इससे हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, AN इज AN - 1 प्लस AN - 2। सो A3 निकाल लेते हैं, A3 इज इक्वल टू, और ये है फॉर n ग्रेटर देन 2 मीन्स n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन के लिए। सो A3 विल बी इक्वल टू A2 प्लस A3 - 2 A1. So A2 plus A1, it is 1 plus 1, it is 2. Similarly A4 निकाल लेते हैं, A4 will be equal to A3 plus A2, it is equal to A3 हमने निकाला हुआ है 2 और A2 ऑलरेडी है हमारे पास 1, so it is 3. A5 is equal to AN - 1 means A4 plus AN - 2 means A3. So it is equal to A4 हमने निकाला हुआ 3 and A देखिएगा A4 3 रख लिया, A3 हम यहाँ से रखेंगे, इट इज़ 2, सो इट इज इक्वल टू 5. सिमिलरली A6 निकाल सकते हैं, इट इज A6 इज इक्वल टू A6 - 1 इज 5, A5 प्लस A4, सो इट इज इक्वल टू A5 इज 5 एंड A4 इज 3, सो इट इज 8. इनके में जरूरत पड़ेगी, हमने n इक्वल टू 1 के लिए निकाल लिया था ये, n इक्वल टू 2. नाउ फॉर n is equal to 3. So for n is equal to 3, AN plus 1 upon AN is equal to AN plus 1. So it is A4 by A3 and it is equal to A4 की वैल्यू ले लेते हैं, it is 3, A3 की वैल्यू is 2. For n is 4, AN plus 1 upon AN is equal to A4 plus 1 is 5, A5 by A4, so it is equal to A5 हमने निकाला हुआ है 5, A4 निकाला हुआ 3, so it is 5 by 3. For n is 5, so AN plus 1 upon AN, it is equal to A6 divided by A5. A6 हमने निकाला हुआ है 8, A5 is 5, so it is 8 by 5. Okay, so for n is 1, we have AN plus 1 upon AN, that is 1. For n is 2,
दिस वैल्यू इज a2 a3 by a2. a3 हमने देखिएगा 2 रख देते हैं यहाँ, और a2 is 1, so it is 2 by 1 means 2. Okay, now n is equal to 3 के लिए it is 3 by 2, n is equal to 4 के लिए it is 5 by 3, and n is equal to 5 के लिए it is 8 by 5. So we can write here the values of an plus 1 upon an for n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. These values are 1, 2, 3 by 2, 5 by 3, 8 by 5. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.